Assalamu alaikum. Dr. Tahir Masood is back to take a lecture number 27 in the course Management 400, Management Theory and Practice. So far we have covered quite a few important topics in this, and today again two topics in this lecture which we have or might have referred here and there in the previous lectures, like in the last two lectures we might have referred to this aspect too, but now we are talking about it either again or going into little more details and showing you some interesting material from the web page and sort of 2-3 presentations. So 46th item is developing managerial competencies. Okay, that can pertain to you, because you may be after qualifications and you may one day become a manager, and hence we talked about managers' leadership qualities and other qualities, and here today we are talking about how to develop managerial skills and managerial competencies, because you would like to be a competent manager. Second topic today will be 47 item, stress management and employee counseling. Okay, that's very important. You have people working under you, you are the manager, you should have a good idea how to deal with your employees, and if need be, how to counsel them, how to give them advice, because you don't want conflicts, you don't want conflict with you, don't want conflict among themselves, and you want everything to be smoothly running. So let's start with developing managerial competencies. Okay, let's start with the first topic, which is developing managerial competencies. This is a very good presentation by Mr. Qazi. I liked it. It's one of the courses I think he taught, and talking of principles of management, and in that talks of management a competency-based approach. Methodology, the author recommends the following methodologies. One is that the competency is achieved through lectures, through videos, through case studies, cases, presentations, discussions and debates, research reports and projects. These are the methodologies which are part of management competency, or this is how you can develop or achieve or implement the competency. ये 4 वेब पेजेस दिए हुए हैं, ब्लॉग, विकी, ईमेल, इम्पोर्टेंट, इस पर कुछ मटेरियल है, ठीक है, अगर आप इसको वक्त मिले तो देख लीजिए ऐसे. मैनेजिंग इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट. आजकल की एनवायरनमेंट जो है चंद सालों से बड़ी फास्ट मूविंग है, बड़ी कम्पेटिटिव है, और इसको लफ्ज़ दे दिया है डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है. यहाँ पे अब लेज़ी होने का कोई चांस नहीं है, और क्योंकि कंपटीशन है आपका विद इन द डिवीजन, विद इन द कंपनी कंपटीशन है, और फिर इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के साथ आपकी कंपनी का कंपटीशन है. So it's a very competitive sort of atmosphere now, where only those designs or practices will survive who are based on some methodology and who produce products which are competitive and which has edge over others. So managing in a dynamic environment is the slogan for this chapter. What we want to learn from this presentation, explain what managers do.
Describe the competencies used in managerial work and assess your current competency level. First, as a manager, I need to know where do I stand. ठीक है जी, जिस लेवल पे मैं हूँ और उसमें क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं और क्या मेरी शॉर्टफॉल्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, तो वो प्रिंसिपल से आप मुकाबला करके कंपेयर करके तो आप उन चीज़ों को जिसमें आप की कमी है उसमें आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं आप। ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे तो आप कह सकते हैं कि इससे कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल इफेक्टिवनेस। क्योंकि एंड के ऊपर बात यही होनी है कि यू शुड लुक ए वेरी इफेक्टिव लीडर, वेरी इफेक्टिव मैनेजर। ओके, your employees should read you and as such and look at you for advice and guidance and for leadership and आप उनको एक इफेक्टिव मैनेजर नज़र आएँ। ठीक, ओके जी। मैनेजरियल competencies, sets of knowledge, skills, behaviors and attitudes that a person needs to effect in a wide range of positions and various types of organizations. आप एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में आप एक डिवीजन के हेड हैं, उसी के अंदर आप मूव भी किए जा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरी डिवीजन में विद स्लाइटली लिटिल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्टीज़। कल को आप वो कंपनी छोड़ के दूसरी में जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस और आ जाती हैं। तो आपकी जो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज हैं वो बेसिकली आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इन चेंजेस के साथ। वाई आर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज इम्पॉर्टेंट? मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है जी, ऑथर ये चंद बातों से एक्सप्लेन करता है आपको कि वाई मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी इज इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू यूज योर स्ट्रेंथ्स टू डू योर बेस्ट। यू नीड टू नो योर वीकनेसेस। वो जो मैंने पहले कहा था कि आप अपना एनालिसिस कर लें कि आपके प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, शॉर्टफॉल्स क्या हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ आपको भी ट्रेनिंग चाहिए। यू नीड डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस at work to become successful leaders and address your weaknesses as early as possible. You probably like to be challenged with new learning opportunities. ये है एक डायनेमिक मैनेजर लीडर की खसूसियात। Organizations do not want to waste human resources. आप human resources जो हैं, the number of people working under you and the type of expertise they have, you want to devise a system whereby you should utilize their capability and qualifications and experience to the fullest. ठीक है, कोई आइडल नहीं होना चाहिए बीच में सिचुएशन। ठीक है, कोई ज़ाया नहीं होना चाहिए वक्त, क्योंकि उसी से फिर प्रोडक्शन अच्छी और बेहतर होगी और ज़्यादा होगी और कंपेटिटिव एज में आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आप सबकत ले जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन, रीस्ट्रक्चर एंड न्यू कंपेटिटर्स ऐड टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग ए बिजनेस। अब चंद सालों से हमारे मुल्क में भी ग्लोबलाइजेशन आ गई है, इंटरनलाइजेशन आ गई है और उसके अंदर अब सिस्टम को भी आपको अकॉर्डिंगली और कल्चर्स भी अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में एक कंपनी है, उसमें कई कल्चर से लोग काम कर रहे हैं और कई एजुकेशन लेवल के लोग हैं, कई मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं उनके मुख्तलिफ। तो उसी तरीके से लीडर जो है वो सिचुएशन को डील करता है। तो ये एक ग्राफिक बना के समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो मैनेजर के लिए एक है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, ओरल रिटन कम्युनिकेशन, और प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्पिटेंसी, सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, ग्लोबल अवेयरनेस कॉम्पिटेंसी, टीम वर्क कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब यह है कि इन 8
एरियाज़ में या क्वालिटीज़ में आपकी कॉम्पिटेंसी बड़ी लाजमी है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लानिंग है, सेल्फ मैनेजमेंट है, ग्लोबल अवेयरनेस है, टीम वर्क कॉम्पिटेंसी है। ये सारे मिलके इसका आउटकम क्या होगा? मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। आप इफेक्टिव मैनेजर बन जाएंगे। फिर ओके, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? हम बातें कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। ए फॉर्मल एंड कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु फंक्शन टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स। कंपनी का विजन है, कंपनी के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, तो उसको अचीव करने के लिए सिस्टम है और उसके अंदर लोग हैं, आप हैं, तो मकसद ये है कि उनको अचीव करना है आपने। दीज गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय इंडिविजुअल एक्टिंग अलोन, तो टीम एफर्ट चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए स्ट्रक्चर डिस्कस्ड इन डेप्थ इन सम अदर चैप्टर। Characteristics of an organization. An organization has a structure. Okay, it looks like an organization. Okay, an organization consists of a group of people striving to reach goals that individuals act alone could not achieve. Organization पे further, two or more people who work together in a structured way to achieve a specific goal or set of goals. ये फॉर्मल एक 2 लाइन की डेफिनेशन आ गई। गोल का क्या मतलब है? Purpose that an organization strives to achieve. Organizations often have more than one goal, or goals are fundamental elements of an organization. The role of management, the guide to guide the organizations towards goal accomplishment. ये आपको मैनेजर्स की पिक्चर दिखा दी है। People responsible for directing efforts aimed at helping organizations achieve their goals. People are the players. A person who plans, organizes, directs and controls the allocation of human, material, financial and information resources in pursuit of organization's goals. ये मैनेजर के बारे है। Management refers to the tasks and its activities involved in directing an organization or one of its units, planning, organizing, leading and controlling. The process of reaching organizational goals by working with through people and other organizational resources. What are the types of managers? So no two managers are the same. Their style, their approach, their dealing with the employees and taking decisions, there's slight difference between them. Function, a classification referring to a group of similar activities in an organization like marketing or operations. इसको function कहते हैं हम, ठीक है? Marketing function, operation function. Functional managers, a manager responsible for just one organizational activity such as accounting, human resources, sales, marketing or production. जैसे आप मैनेजर प्रोडक्शन हैं, ठीक है, मैं मैनेजर मार्केटिंग हूँ. Focus on technical areas of expertise. Use communication, planning and administration, teamwork and self-management competencies to get work done. What are the types of managers continued from the last slide? General manager responsible for the operations of more complex units, for example, a company or a division. ठीक है, जनरल नेचर की जो मैनेजमेंट है उसके जो मैनेजर्स हैं उनको हम जनरल मैनेजर्स कह देते हैं. Oversee work of functional managers responsible for all activities of the unit, need to acquire strategic and multicultural competencies to guide organizations. Many other type of managers are there. Basic managerial functions adapted from figure 1.2,
we're talking about basic managerial functions. This figure I showed you, this based on organizing, leading, controlling and planning. ये basic managerial functions हैं. Management process and goal attainment. Organization goals. ठीक है जी, ये प्लानिंग है. प्लानिंग से ये आप कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग, प्लानिंग, तो ये साइकिल इस तरह से चलता है. और प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग से भी तल्लक है. तो ये सारों का स्वाय ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का प्लानिंग के साथ बाकी सब का बैकवर्ड फॉरवर्ड फीडबैक है. ये आपका मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, पीपल, मनी, रॉ मटेरियल, कैपिटल रिसोर्सेज, ये आपको चाहिए. ये आपके रिसोर्सेज हैं टू डू ए टास्क, टू डू ए जॉब. दिस गोज एज इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस डिज़ाइन. और उसमें से आउटपुट क्या निकलता है? फिनिश प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. आप प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, गुड्स भी बनाते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. कई दफ़े गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, कई दफ़े सिर्फ आपकी कंपनी जो है वो प्रोवाइड भी करती है प्रोडक्ट्स और कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग भी है, ठीक है, और आप कंसल्टेंट भी हैं, ठीक है. या आपके प्रोडक्ट को बैकअप के लिए आपका एक कोई नंबर है या एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने रखी हुई है. पीपल कैन कॉल विद द प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट, व्हाट टू डू. जैसे कंप्यूटर के, जैसे AT&T और दूसरों के टेलीफोन नंबर आप कॉल करते हैं, कस्टमर सर्विस से कहते हैं. यहाँ पे भी आप सारे जो PTCL है, दूसरे हैं, उनके वेरियस सर्विस प्रोवाइडिंग नंबर्स हैं. प्लानिंग, इसमें अब ये हमने बात की थी यहाँ प्लानिंग की. तब प्लानिंग पे फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. तो प्लानिंग टीम वर्क है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डेल्फी टेक्निक है, एक्सपर्ट को बैठा लेते हैं, उनकी राय लेते हैं या आपस में आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आउटलाइनिंग हाउ द टास्क मस्ट बी परफॉर्म्ड and indicating when they should be performed, how the task should be performed and when they should be performed. Planning continues, determining organizational goals and means to reach them. Managers plan for 3 reasons: establish an overall direction, identify and commit reasons to achieve goals, decide which tasks must be done to reach that goal. ये ऑर्गेनाइजिंग की दी हुई है एक चार्ट कह लें आप, ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ है. Just for you have a glance. Organizing means assigning the planned tasks to various individual groups within the organization and creating a mechanism to put plans into action. लोगों को ड्यूटीज़ एलोकेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट करते हैं आप, फिर वो वर्क टुगेदर करते हैं और उससे फिर ये है कि वो एक मैकेनिज़्म डेवलप हो जाती है जिसे करने के साथ फिर आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं. Process of deciding where decisions will be made, who will perform what job and tasks, includes creating departments and job descriptions. Planning requirement के मुताबिक आपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, फिर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली लिखी जाती है, किस्म से लोग चाहिए, क्या चाहिए. Leading or influencing means
guiding the activities of the organization members in appropriate directions. Objective is to improve productivity. आपका, आपके डिवीजन का, आपकी कंपनी का मकसद यह है कि प्रोडक्टिविटी बेहतर से बेहतर आप कर सकें. और लीडिंग पे कमेंट ये है, गेटिंग अदर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क बाय मोटिवेटिंग देम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. क्रूशियल एलिमेंट इन ऑल फंक्शंस. डिस्कस थ्रू आउट द बुक एंड इन डेप्थ. इन बुक की बात कर रहा है, डायनामिक्स ऑफ लीडरशिप में ये फर्दर डिस्कशन है. कंट्रोलिंग, गैदर इंफॉर्मेशन that measures recent performance, compare present performance to pre-established standards, determine modifications to meet pre-established standards, controlling process by which a person, group or organization consciously monitors performance and takes corrective actions as you go along, discussed in chapter 10 of the book. ये पिरामिड दिखा दिया बना के. एक टॉप मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, नॉन मैनेजर्स हैं. ये स्टाफ का आपका इस तरह से है, ठीक है. आजकल मिडिल मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया चंद सालों से. इसके ऊपर अगर आप वेब पेज पे जाएं तो रिसर्च भी, ठीक है, कई मेरे एक MS स्टूडेंट ने इस पर रिसर्च की थी और थीसिस कंप्लीट किया उसने कि मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो क्या कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है ये कॉन्सेप्ट, और उनके क्या है मॉडल बनाया उसने, और हमने वो रिसर्च की. अच्छी रिसर्च निकली है वो. अब वो उनके जो हमने दिखाया वेरियस टियर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टॉप मैनेजर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सुपरवाइजरी रोल, वो पॉलिसी और वो इसको देखते हैं, ठीक है. डिटेल्स में वो नहीं जाते. डेवलप गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर प्लानिंग एंड लीडिंग टाइम उसमें लगाते हैं. कम्युनिकेट विद की स्टेक होल्डर्स, यूनियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपनी पॉलिसीज. यूज ऑफ मल्टीकल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन, कॉम्पिटेंसीज टू लीड फर्म इन क्रूशल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी. First line managers have direct responsibility for producing goods or for service foreman, supervisor, clerical supervisor. ये फर्स्ट लाइन है जो इमीडिएट लेवल है. उसके बाद उसके ऊपर मिडिल मैनेजर्स हैं. एग्जाम्पल उनकी असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन हेड. उसके बाद टॉप मैनेजर्स की बात पहले हो गई है. फर्स्ट लाइन मैनेजर पे थोड़े से और कमेंट्स हैं. डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये इनका टच होता है वर्कर्स के साथ और फर्स्ट लाइन लेबर के साथ और सारों के साथ. डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी. एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स डू द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, स्पेंड लिटिल टाइम विद टॉप मैनेजर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. टेक्निकल एक्सपर्टीज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. रिलाई ऑन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Responsible for setting objectives that are consistent with top management goals. Responsible for coordinating activities of first line managers. Establish target dates for products and services. Need to coordinate with others for resources. Ability to develop others is important. Rely on communication, teamwork and planning. Management level and skills. ये वही लेफ्ट के ऊपर जो है ये पिरामिड आपने पहले देखा है, ठीक है. बॉटम पे सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है. तो तीनों से नीड्स डेवलप होती हैं और स्किल्स नीडेड उसके क्या है, ठीक है. ये कलर्स में देखें आप कि जो सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उनकी टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा उनका होता है, ठीक.
उससे कम, और ये बिल्कुल थोड़ा सा वो इंटरेक्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ, वरना उनका काम यहाँ और यहीं ख़त्म हो जाता है ह्यूमन स्किल्स का। तो कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज़ एंड ऑल दैट टॉप वालों की ज़्यादा ज़रूरत है। इससे देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी कलर से इस्टेब्लिश हो जाती है कि ज़्यादा किसकी कहाँ पे है। A combination of knowledge, competency, skills, behavior and attitude that contribute to personal effectiveness. Management competencies पहले बात कर चुके हैं हम। 6 core managerial competencies, what it takes to be a great manager. ठीक है जी, communication, planning, teamwork, strategic action, multicultural competency, सेल्फ मैनेजमेंट। पहले एक ग्राफिक में ये दिखा चुका हूँ मैं आपको। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी क्या होती है? एबिलिटी टू इफेक्टिवली ट्रांसफर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? यूज टू अनाउंस मेजर इवेंट्स, डिसीजंस, एक्टिविटीज एंड अदर इंडिविजुअल्स अप टू डेट। नेगोशिएशन एबिलिटी होनी चाहिए, यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स, ऑब्टेन रिसोर्सेज एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी क्या है? डिसाइडिंग व्हाट टास्क नीड टू बी डन, डिटर्मिनिंग हाउ दे कैन बी डन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एनेबल देम टू बी डन, एंड देन सिट बैक एंड मॉनिटर प्रोग्रेस टू इंश्योर दैट दे आर डन ऑन टाइम विद इन रिसोर्सेज, within the cost. Information gathering, analysis, problem solving and from employees and customers. Planning and organizing projects with agreed upon completion dates. उसके बाद time management, जैसे cost management बड़ी important है, time management भी है। You want to complete a task or a project on time. Budgeting and financial management side, इसका knowledge बड़ा ज़रूरी है। मैंने एक लेक्चर में जिक्र किया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट, जो आपका कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो एक फिगर हो सकती है, लेकिन वो इट कैन रन इन 3 years एंड सो दैट मीन्स 3 फाइनेंशियल ईयर उसमें आ जाएं, तो उसके लिए 3 बजट आपको बनाने पड़ेंगे। टीम वर्क कॉम्पिटेंसी क्या है? अकम्पलिशिंग टास्क थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, अगर 12 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उनको फर्दर 4-4 की टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो टास्क भी अकॉर्डिंगली फिर सब टास्क उनको एलोकेट कर देते हैं, ठीक है, और आप उनकी फिर कोऑर्डिनेशन और लीड आप करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग टीम्स प्रॉपर्ली इन्वॉल्विंग हैविंग पीपल पार्टिसिपेट इन सेटिंग गोल्स, क्रिएटिंग ए सपोर्टिव टीम एनवायरनमेंट, मैनेजिंग टीम डायनामिक्स, स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्पिटेंसी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मिशन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरिंग द एम्प्लॉयज एक्शन मैच विद देम, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, सपोर्टिव रोल्स उनके क्या है, कनेक्शन क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, टेकिंग की स्ट्रेटेजिक एक्शन टू पोजिशन द फर्म फॉर सक्सेस स्पेशली इन रिलेशन टू कंसर्न ऑफ स्टेक होल्डर्स। leapfrogging competitors, ठीक, competitors के बराबर जाना है या आगे जाना है, तो इस वजह से प्रोग्रेस में आप लीपफ्रॉग करते रहें, ठीक है, वेरियस स्टेजेस में, फेजेस में आप, ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस उनसे ज़्यादा करें ताकि वो लीपफ्रॉगिंग कॉन्सेप्ट में आप उनसे आगे निकलें। स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्पिटेंसी, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुनिया की बड़ी कंपनीज में है, मस्ट सेल ऑफ बिजनेस दैट डोंट फिट इट्स कोर स्ट्रेटजी। कुछ अर्से के बाद स्ट्रेटजी में वो बोर्ड जो है, वो एग्जीक्यूटिव टीम जो है, वो कहती है कि ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये हमारी कोर स्ट्रेटजी में लॉन्ग रन में ये फिट नहीं होती, तो इस वास्ते उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरी कोई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंसी,
Understanding, appreciating and responding to diverse political, cultural and economic issues across and within the nations. ये अमेरिका और यूके और उन मुल्कों में जहाँ कई मुल्कों से लोग कल्चरल बैकग्राउंड से काम करने आते हैं एज लेबर और ग्रीन कार्ड पे चले जाते हैं, सिटीज़न बन जाते हैं जैसे मैं हूँ, तो वो फिर हमारा थोड़ा सा फ़र्क होता है वहाँ काले गोरे के साथ कल्चरली और दूसरा, और तो उस हिसाब से फिर वो कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट भी वही क्रिएट करनी होती है. कल्चरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स इन एटलीस्ट ए फ्यू अदर कल्चर्स. ठीक है, अमेरिका में जैसे हो तो सबसे पहले मैक्सिकन कल्चर को समझना मैनेजर के लिए, सीईओ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है. फिर उसके बाद अगली बिग लेबर फोर्स जो है वो यूरोप से है. ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया से है, फिर पाकिस्तान से है. तो ये 3-4 कल्चर्स को उस कंपनी के जो बोर्ड है, जो सीईओ है, जो आप मैनेजर अगर हैं तो वो समझने की ज़रूरत है. रिस्पेक्टफुल ऑफ सोशल एटिकेट वेरिएशंस, कल्चरली डिफरेंस होता है. ठीक है, आप उसी तरह से हर कल्चर वाले को डील नहीं कर सकते. एक्सेप्टिंग ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस. सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी क्या है? डेवलपिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड एथिकल. आप एज मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें. जहाँ पे आपकी कोई डेफिशिएंसी है उसको आप दूर कीजिए, डेवलप कीजिए. आप अपनी भी डेवलपमेंट करें, ट्रेनिंग करें और दूसरों पे मत डालें. बल्कि अगर कोई चीज़ होती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सॉरी कहने की ज़रूरत है तो सॉरी भी बोल दें, कोई बात नहीं. पर्सनल ड्राइव एंड रेजिलियंस, बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ इश्यूज, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज स्नैपशॉट जिसे कहते हैं, एक सेइंग फ्रॉम हिस्ट्री. ओके, ओवरव्यू ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजिंग द एनवायरनमेंट. Part 3 is planning and control. Part 4 is organizing. Part 5 leading. You are the leader. अच्छा, ये दूसरी प्रेजेंटेशन मैंने साथ इसके जोड़ी है, मैनेजिंग इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. Explain what managers do. Explain what managers do. Describe the competencies used in managerial work. अच्छा जी, इसकी बात कर रहे थे हम. Part 1 overview of the management. Part 2 is managing the environment. Part 3 is planning and control. 4 is organizing. 5 is leading. अच्छा, टीम वर्क कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें डिज़ाइनिंग टीम्स, क्रिएटिंग टीम, सपोर्टिव एनवायरनमेंट. डिज़ाइनिंग टीम्स, क्रिएटिंग सपोर्टिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, टीम वर्क कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट जो है. और मैनेजिंग टीम डायनेमिक्स. in strategic action competency, understanding the industry, understanding the organization, taking strategic action. strategy आप समझते हैं, पहले कई दफ़े बात हो चुकी है. strategy is normally little long term. okay, जैसे हम कहते हैं कि 5 year प्लान, 10 year प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान, तो उसमें स्ट्रेटजी इन्वॉल्व हो जाती है कि ठीक है ये 2 साल ये चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसको रीडिज़ाइन करेंगे और तीसरे और चौथे साल में ये करेंगे, 5 सालों के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे और उसकी जगह पे ये दूसरा एक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है जी. ग्लोबल अवेयरनेस कॉम्पिटेंसी. कल्चरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले बात कर दी है. अगर मल्टी कल्चरल कंपनी है उसके अंदर फिर मैनेजमेंट्स को कल्चर्स का थोड़ा समझ आनी चाहिए, क्योंकि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं. कल्चरल अवेयरनेस, ओपननेस एंड सेंसिटिविटी. सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी ये आपकी है. इंटेग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट, पर्सनल ड्राइव एंड रेजिलियंस, बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ इश्यूज, सेल्फ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट. Competency approach to human resource management. What do we mean when we say competency? पहले हम डिफाइन कर चुके हैं उसको. ये एक और स्टेटमेंट है
is a underlying characteristic of a person which enables him or her to deliver superior performance in a given job, role or situation. The competencies are seen mainly as inputs. Okay, they consist of clusters of knowledge, attitudes and skills that affect an individual's ability to perform. Mr. Hayes ने 1979 में ये स्टेटमेंट दी थी कि competencies are generic knowledge, motive trait, social role or skill of a person linked to superior performance on the job. Competencies are personal characteristics that contribute to effective managerial performance. UNIDO 200 में competency is a set of skills, related knowledge and attributes that allow an individual to successfully perform a task. Just a cursory sort of glance or knowledge, you know. Okay. What is common in the definitions of competencies and job? Okay, ये 5 bullets left पे दिखाए हैं और 5 ही relatively on the right दिखाए हैं. Competencies में क्या चीज़ें 5 हैं और vis-a-vis जॉब के डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में बात करते हुए 5 चीज़ें क्या है. ये ग्राफिक फॉर्म में सेट ऑफ स्किल्स, नॉलेज, बीच में कॉम्पिटेंसी है और ये तीनों मिलके कॉम्पिटेंसी को बर्थ देते हैं और कॉम्पिटेंसी से फिर outstanding performance of tasks or activities. ये outcome, that's what we want to achieve. Behavior indicators. Okay, a company is described in terms of key behaviors that enable recognition of that competency at the workplace. Example of a competency: the ability to break problems into component parts and consider organized parts in a systematic way, the process of looking for underlying causes or thinking through the consequent or different. ये बड़ी formal analytical thinking की definition है. ठीक है. Key behavioral indicators हैं 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Independently researches for information, ability to work, what needs to be done. ठीक है. ये इंडिकेटर्स हैं बिहेवियर के एक एम्प्लॉय में जो आपको नज़र आएंगे. एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग और मेन प्रॉब्लम, शोज विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. ठीक है. डेवलप ए लिस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग गाइडलाइंस टू हेल्प अराइव ए लॉजिकल सोल्यूशन. ये कंपटीशन मॉडल क्या चीज़ है? ठीक है जी. एक कॉम्पिटेंसी मॉडल इज ए वैलिड, ऑब्जर्वेबल and measurable list of the knowledge, skills and attributes demonstrated through behavior that results in outstanding performance in a particular work context. Typically, a competency model includes competency titles, definitions of those titles, key behavioral indicators. Competency broad categories: generic and managerial. तो ये 2 कैटेगरीज मेनली ब्रॉड कैटेगरी कॉम्पिटेंसीज की, काबिलियत की. ठीक है जी. कॉम्पिटेंसी ब्रॉड कैटेगरी, फर्दर कमेंट्स एंड टेक्निकल फंक्शनल, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एट्सेट्रा. ये आपकी टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंसी गिनी जाएगी. कॉम्पिटेंसी मॉडलिंग बिगिंस द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग टूल्स टू link employee performance to the mission and goals of the organization. Why competency? Why we need competencies in the organization? ठीक है. Job analysis leads to the following and competency model leads to the following. ठीक है. दोनों का रिलेशनशिप है आपस में. ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस वर्सेस कॉम्पिटेंसी अप्रोच. अच्छा जी. डिस्टिंग्विश सुपीरियर फ्रॉम मियरली सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस. ठीक है. एक सुपीरियर परफॉर्मेंस होती है, एक मियर रूटीन satisfactory, but ठीक है जी, काम चल रहा है. Approach allows executives and managers to make a distinction between a person's ability to do specific tasks at the minimum acceptable level and the ability to do the job in an outstanding fashion. जैसे ग्रेड आप स्टूडेंट हासिल करना चाहते हैं, एक तो mere passing grade,
कि जी सी ग्रेड है, पास हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि आप बी लेना चाहते हैं, ए लेना चाहते हैं, या लेना चाहती हैं। तो इसी तरह से कॉम्पिटेंसी की भी लेवल्स हैं। बिहेवियर इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन व्हाट आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एक्चुअली डू। Competency definitions are based upon outstanding current performance, and these competencies do not reflect someone's management theory. The competencies are behavior specific, that means related to the behavior. It is one thing, for example, to ask whether an employee takes initiative, a very general concept open to interpretation, but it is quite another to ask, was it typical of this manager to carry out tasks without your having to request that they be done? A question which has only two answers, yes or no. Holistic application competencies की help companies raise the bar of the performance expectations, help teams and individuals align their behavior with key organizational strategy and goals. Each employee understand how to achieve expectations. ये ग्राफिक है अलाइनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मॉडल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है जी, कंपनसेशन और टाइमिंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये इनपुट हैं कॉम्पिटेंसी मॉडल में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिक्रूटमेंट, अगर ठीक तरह से प्लान किए जाएं इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, गुड इफ़ेक्ट होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, competency enable establishment of clear high performance standards, collection and proper analysis of factual data, conduct of objective feedback meetings, direction with regard to specific area of improvement. Competency based training, ठीक है जी, कौन सी होनी चाहिए? अच्छा जी, competency based development. Competencies contribute to the understanding of what development really means. Give the line managers a tool to empower them to develop people. ठीक है, उसको अथॉरिटी भी और उसको टूल्स भी और उसको फंड्स भी, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो है उनकी डेवलपमेंट कर सकें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। वैसे होता है इन्हांस्ड प्रमोशन, इन्हांस्ड इंक्रीमेंट, या हर अच्छी कॉम्पिटेंसी रिजल्ट्स पे आप की अथॉरिटी है, आप इंसेंटिव के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स। स्टेप्स इन मॉडल बिल्डिंग, कॉम्पिटेंसी मॉडल बनाना है तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल, सेलेक्ट डाटा कलेक्शन मेथड, ऑर्गेनाइज डाटा कलेक्टेड, identify main themes, build the model, review the model. Data collection and methods, critical interviews, resource expert panels. ये डिटेल में डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये अलग कोर्स भी है और अलग एक्सपर्टीज़ गिनी जाती है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ सॉर्ट ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़, इसमें तो नॉलेज थोड़ा सा मैनेजमेंट थ्योरी और प्रैक्टिस में आपका होना चाहिए। ये डिटेल्ड अप्रोच मॉडल बिल्डिंग की क्या है? Detailed approach, critical incident technique, interviewing top performers, list behaviors, list competencies. A detailed approach continues content analysis approach.
ये ग्राफिक बड़ा अच्छा है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग मॉडल, ठीक है। अब उसको मॉडल को जो है आप उसको एक फॉर्मल शेप देना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन क्या है, जिसके अंदर विजन है, मिशन है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म, और वैल्यूज़ क्या हैं कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की। देन ट्रांसलेटिंग थीम इनटू एक्शन फॉर एक्चुअलाइजेशन, एंड देन थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स, पोजीशंस, देन कोर competency of the organization and role competency, ठीक। So एक से as input goes to the next one and then the next one and the next one, ठीक। और feedback इससे फिर वापस राइट पे दिखाया हुआ है। competency mapping process continues, designing the questionnaire, डाटा इकट्ठा करने के लिए ये भी एक्सपर्टीज़ है। एक सवाल कितने हम सवाल पूछने हैं, हमने किस तरह से पूछने हैं, मेल करने हैं, बिलमुशाफा पूछने हैं, ठीक है, सर्वे के अंदर। तो ये भी एक टेक्निक है। यहाँ पे सिर्फ जनरल नॉलेज, ठीक है जी। ये जॉब के बारे है, ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, की रिजल्टेंट्स, की एक्टिविटीज़, एक फॉर्मेट एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिखाया हुआ है। डिज़ाइनिंग द क्वेश्चनर कंटिन्यूड, relationship, organized structure, empowerment, opposition, budget and control, investment plan, designing the questionnaire part 2, data collection, उसकी क्या क्या concepts आपने रखने हैं सामने, competency drafting, comparing good performer, average performer, use research data and assign competencies to various positions. Finalize role description and competencies job wise. Finalizing core competencies for frontline manager, middle management, senior management or top management. Effectiveness of organization, the simulation of summation of the required competencies in the organization. Gap analysis, role clarity, selection, succession planning, restructuring. Just glance over this slide. आज के लेक्चर में दूसरा पार्ट इसका, जिस पे थोड़ा सा चंद स्लाइडें मैं आपको दिखाऊंगा, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि स्ट्रेस जो है उसको समझना मैनेजमेंट के लिए, और ख़ुद भी अपनी भी स्ट्रेस एनालिसिस, और लेकिन ज़्यादा यहाँ बात हो रही है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। यू वांट टू क्रिएट वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, ठीक है। पीयर्स आपस में काम एमिकेबली इत्तेफाक से करते हैं। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए और बिहेवियर्स हो जाएं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी कभी ख़राब भी निकल सकते हैं। सो अंडर स्ट्रेस आप कई दफ़े देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं आप, ठीक है। तो कल परसों एक ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल तो नहीं है, कल ही हुआ है शायद, फैसलाबाद में एक पता नहीं 6वीं या 8वीं जमात का तालिब इल्म था। तो वो स्कूल जाता था, गैर हाज़िर हो जाता था, आधा दिन छोड़ के चला जाता था, और उसके हेडमास्टर और टीचर ने बाप को बुलाया कई दफ़े। तो बाप अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कि बेटा नालायक है, ऐसे काम करता है, तो वो टीचर्स को मिलने नहीं गया। तो दोनों का काम है मैनेजमेंट का, इन दिस केस हेडमास्टर और टीचर का, और पेरेंट्स का और स्टूडेंट का। ये एक मॉडल है जिसके अंदर तीनों को इकट्ठे मिल के काम करना है। इसी तरह वर्किंग प्लेस पे है। तो वो स्टूडेंट फिर निकाल दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्कूल, और जब वो निकाल दिया तो उसने तेल छिड़क के अपना बाहर जाके कहीं आग लगा ली, और एक दिन हॉस्पिटल में रह के, आई थिंक ही इज़ डाइड लास्ट नाइट, ट्रेजिक। एंड नाउ the father has lodged a FIR against the headmaster and the teacher, which I don't know, I'm not taking side, but maybe they just follow the school rule कि इतनी एब्सेंस हो तो ये एक वार्निंग है, दूसरी है, तीसरा पेरेंट्स को बुलाओ, वो ना आए तो उसके बाद उसको रेस्टिकेट कर दो, स्कूल से निकाल दो। ये तो सब जगहों भी होता है, अमेरिका में हमने देखा है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। मैं हाई स्कूल 1 साल पढ़ाया, ठीक, मैं बुलाता था पेरेंट्स को, ठीक है। एक पेरेंट्स डे वंस ए वीक, वंस एक सेमेस्टर होता है जिसमें पेरेंट्स खुद वॉलंटरीली विज़िट करते हैं सारे टीचर्स को बारी बारी, और लिसन अबाउट दिस चाइल्ड। लेकिन उसके अलावा भी इन बिटवीन भी बुला लेते थे, मैं बुलाता था, फ़ोन करता था मैं, ठीक।
गिव द प्रोग्रेस ऑफ द गुड एंड बैड स्टूडेंट्स बोथ। और जो गैर हाजिर होता था या कुछ होता था तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉल। एंड मोस्टली ब्लैक अमेरिकन में ये जवाब मिलता था फादर्स की तरफ से कि प्लीज़ कॉल दिस नंबर एंड टॉक टू द मदर, यू नो, बिकॉज शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एजुकेशन एंड दिस एंड दैट। सो आई यूज्ड टू कॉल द मदर. Okay, oh, I'm busy, I work till 5, I work till 4. I said, okay, you come after 5 and I'll come. I'll wait for you. Okay, oh, will you? I said, yeah, I will. Because that's my duty, that's my job. तो इसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैनेजर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व उसको होना चाहिए स्ट्रेस में, ठीक है? क्योंकि इससे पहले कि लेट हो जाए मामला और कोई चीज़ हो जाए, तो कंपनीज के अंदर होता है स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है और मैनेजमेंट उसको नोटिस नहीं लेती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये होते हैं तो एक दिन एम्प्लॉय जो है वो पिस्टल लेके आ जाता है एंड वो एक दो को वर्कर्स को मार के खुद अपने आप को भी मार लेता है। तो ये बड़ा कॉमन है यूएस के अंदर, ठीक है? आप अखबार में, टीवी में, इंटरनेट पे आप देखेंगे ये बातें। तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी है। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज़ योर माइंड एंड बॉडीज रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू ए रियल और इमेजिन थ्रेट, ठीक है? आपने वार्निंग दी, आपने प्रमोशन नहीं दी, आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया, घर गया, बीवी ने डांटा, तुम कैसे हो, तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिला, और दूसरे को 7% मिला है, तुम्हें 1% मिला है, तो वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है। द थ्रेट, इवेंट और चेंज आर कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेसर्स. स्ट्रेसर्स कैन बी इंटरनल थॉट्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स. लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, ओके जी। Use stress or positive stress occurs when your level of stress is high enough to motivate you to move into action to get things accomplished. बाज़ दफ़े ये बैड एस्पेक्ट सिर्फ स्ट्रेस का नहीं होता, नेगेटिव साइड पॉजिटिव भी होता है, ठीक? वो मेरा एक कोवर्कर जो है उसने कोई टेक्नोलॉजी में नया इनपुट ईजाद कर लिया, कुछ कर लिया और मेरे पे वो स्ट्रेस हो गया कि ये मुजीब ने ये कर लिया है तो मुझ में क्या ख़राबी है, तो मैं आई शुड वर्क हार्ड एंड आई शुड कम आउट विद सम सजेशन एंड ऑल दैट। तो वो भी अंडर स्ट्रेस मैंने हार्ड वर्क किया, ये किया, वो किया। लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? डिस्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है? योर स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव एंड डिस्ट्रेस इज़ नेगेटिव, विच इज़ बैड। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस। अलार्म स्टेज, एज यू बिगिन टू एक्सपीरियंस ए स्ट्रेसफुल इवेंट। मैंने एग्जांपल आपको दी स्कूल के बच्चे की और वहाँ अमेरिका में इंडस्ट्री की भी, ठीक? पाकिस्तान में भी कंपनी में आपने अगर काम किया है तो आप में से ज़्यादा जानते होंगे कि ये होता है। एग्जांपल्स, कार्डियक इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है फिर स्ट्रेस का, नेगेटिव स्ट्रेस का खासकर। स्किन इफेक्ट्स, हार्मोनल इफेक्ट्स, कार्डिक आपका एक्साइट हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, खुदा न खासा हार्ट अटैक हो जाता है। रेजिस्टेंस स्टेज इज ड्यूरिंग द स्टेज योर बॉडी ट्राइज टू कोप और अडॉप्ट टू द स्ट्रेसेस बाय बिगिनिंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एनी डैमेज द स्ट्रेस हैज कॉज्ड। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं दो। बिहेवियर इंडिकेटर्स इंक्लूड लैक ऑफ एंथुजियाज्म फॉर फैमिली, स्कूल, वर्क और लाइफ इन जनरल। Cognitive indicators include poor problem solving, confusion, nightmares। तो मैनेजर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो उसका पता हो जाना चाहिए कि ये एम्प्लॉय जो है ये डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहा है, क्या वजह है, ठीक? उसको कॉन्फिडेंस में लें, दरवाज़ा बंद करके उससे डिस्कशन करें, बात करें कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, वे कैन आई हेल्प यू, ठीक है? तो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो मैनेजर को वो भी समझनी चाहिए उसकी, ठीक है जी? रेजिस्टेंस स्टेज, मोर एग्जांपल्स, फियर, एग्जाइटी। पहले तो शुरू में प्रिलिमिनरी इंडिकेटर्स है ना, तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, आगे से वो रेजिस्ट करता है एम्प्लॉय, जो नो डिप्रेशन में चला जाता है, वो गिल्टी फील करता है। एग्जॉस्शन स्टेज उससे अगली है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्ट्रेसर इज नॉट बीइंग मैनेज्ड इफेक्टिवली। इसका मतलब आपने उसको, एज यू आर नॉट ए गुड मैनेजर इन द बॉडी एंड द माइंड आर नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज, ठीक? वो फाइट बैक नहीं कर रहा, शी इज़ नॉट कमिंग बैक। एग्जाम्पल्स आर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ये मेडिकल का दिया हुआ है, विड्रॉल, हेडेक, टेंशन। इंटरप्रेटिंग योर स्कोर लेस दैन 150
पॉइंट्स रिलेटिवली लो, ये एक वो टेस्टिंग स्केल के ऊपर एक एग्जांपल से ये दिया हुआ, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। ये वेब पेजेस हैं यूज़फुल, जिसके ऊपर मोर स्ट्रेटजीज का जिक्र किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात की। ज़्यादा टाइम हमने और स्लाइड्स हमने दिखाई हैं डेवलपिंग मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज को हमने डिफ़ाइन किया है और उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया है, और फिर उसका वेरिएबल्स वेरियस डिस्कस किए हैं, और कॉम्पिटेंसी मॉडल पे जिक्र हमने किया है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ कहाँ फिट होते हैं, इसके मैनेजर का क्या रोल है, और कंपनी के अंदर वेरियस किस्म की जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर इमीडिएट सुपरवाइजर होते हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर टॉप मैनेजमेंट है। तो आप नॉर्मली एज ए मैनेजर यू विल बी प्रॉबेबली आइदर द इमीडिएट मैनेजर और द मिडिल मैनेजर। मिडिल मैनेजर जो होते हैं वो असल में दे आर लाइक ए लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजर्स एंड इमीडिएट सुपरवाइजर्स। वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज मनी एंड कॉस्ट व्हिच इज गोइंग टू कॉस्ट द कंपनी, तो वो इसलिए मिडिल मैनेजमेंट बीच में शामिल कर देते हैं। जैसे डायरेक्टर है, टॉप मैनेजमेंट एक डिप्टी डायरेक्टर कर दिया, ताकि डायरेक्टर को स्ट्रेटजीज और बाकी पॉलिसीज़ और दूसरी टॉप मैनेजमेंट से डील करने के लिए वक्त मिल सके, और उसको वो बॉदर ना हो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को करने के लिए। वो मिडिल मैनेजमेंट या वो सुपरवाइज़र जो करता है मैनेज एम्प्लॉयज़ को, वो बिटवीन द टू, ठीक है, ऊपर की पॉलिसीज़ और जो नीचे ऑर्डर्स पास करता है, और नीचे के फीडबैक जो है वो टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाता है। ठीक है जी। और ज़्यादा वक्त हमने इस पे मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज पे आज सर्व किया है, और आखिर में कुछ स्लाइडें थी स्ट्रेस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय काउंसलिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट की मैंने कुछ स्लाइडें दिखाई, और उसमें ये काउंसलिंग का जिक्र भी आ गया। सो आप एज मैनेजर और इमीडिएट सुपरवाइजर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर sort of reading your employees and be aware of their sort of the behavior indicators and other indicators to tell you about every employee on daily basis, and you should give counseling to the employee, and if need be you call the human resource management or meet the director of the human resource management. They have experts, girls, you know, who are counselors. They trained, they know how to deal with situations. So you send your employee to tell him to go and see Miss Amna or somebody, and get an appointment, and she sits with him or her and discusses and listens to him and her, and any problem on the job or at home or what. So be frank, don't feel it's confidential, I won't tell anybody. So where then she tells the manager where he can or she can help to resolve the situation and the conflict management and all that. तो इस वास्ते स्ट्रेस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय काउंसलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर आप क्यों उसको काउंसल क्या कर सकेंगे आपको। चलें, ये लेक्चर हमने आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं 27 में, तो अगले पे आप इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।